Welcome back, children. Today let's start with a new chapter that is related to economic problems and challenges, poverty and unemployment. That's lesson 17, economics part of our social studies. And here we are going to study and know in detail about poverty and unemployment as not only as a economic problem but also as a challenge that we are facing, and how our government has tried in these many years to bring down the percentage of poverty and unemployment in our country. But before knowing about the various policies of our government, various strategies adopted by our Indian government to reduce poverty and unemployment, let us first know what is the meaning of poverty and what do you mean by unemployment, and what are the reasons that led to increase in the percentage of poverty and unemployment in our country. Later on we will be doing that what our government adopted, which all methods were adopted, or as I told you, various strategies that were adopted by our government to, we can't eliminate poverty, but at least we can reduce poverty. So for that our government has done a lot. So let's start. Indian economy experiences many serious and complex economic and social problems such as population growth. ये तो सबको by heart ही होगा. If at all, if any time, if you are asked that which is the biggest problem, economic problem of our country, तो सबसे पहले मुंह पे आ जाएगा, तुम्हारे जुबान पे आएगा एक आंसर, population growth या overpopulation, what you call. Then apart from that, so that is the root cause, I would say, population growth. फिर और जो problems हम face कर रहे हैं हमारी country में वो है price rise, black money, poverty, unemployment, starvation मतलब भूखमरी, corruption, terrorism, etc. Among which economic problems like poverty, unemployment, price rise, population increase are the major problems. And in this chapter, however, we are going to deal with poverty and unemployment. Now, first of all, what do you mean by poverty? Poverty का मतलब है that अगर basic necessities ना मिले, तो few years back the definition of poverty was कि 3 basic necessities जिसको ना मिले, that person is said to be living in poverty, like food, clothing, shelter. But today we consider 5 things or maybe more than that which are very important for a person to sustain, and poverty line के ऊपर रहने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. तो now a new definition that we are going to learn and write of course is basic necessities जिनको ना मिले, और ये 5 basic necessities that you are going to learn is food, clothing, shelter. ये तो है ही. Apart from that, education and health. These services are very important. So a large number of people are deprived, means they are not getting, they are deprived of satisfying their basic and essential requirements of life like food, clothing, shelter, health, education. जब ये सारी चीज़ें लोगों को ना मिले, बहुत सारे लोगों को, 1 या 2 को ना मिले, तो हम नहीं कहेंगे कि हमारे कंट्री में पॉवर्टी की जो कंडीशन है बहुत ही हाई लेवल पे है. नो, इट इज़ when a large number of people, when they are not getting these basic necessities, food, clothing, shelter, health and education, then we term it as that condition as poverty condition. उस situation को हम कहेंगे comprehensive poverty, and people who are living in this condition in the society, they are termed as poor. So learn the definition of poverty and poor. ये 2 definition पहले learn कर लो. इस पेज की 2 important definition, right? 1 mark off. Next we move on to very important, your 2 marker this whole section, people living below poverty line, so BPL. तो इसका मतलब यही निकलेगा फुल फॉर्म,
कोई और नहीं होगा. पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट इज BPL. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि हमने अभी जैसे जस्ट फ्यू डेज बैक वी हैड कंप्लीटेड आवर 10th चैप्टर एग्रीकल्चर इन SS. वहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट पेज का जो फर्स्ट पैराग्राफ है 10th चैप्टर का, दैट यू विल हैव टू लर्न इट परफेक्टली, नॉट ओनली फॉर दैट 2 मार्कर क्वेश्चन बट ऑल्सो वेन एवर यू आर गोइंग टू राइट डिटेल आंसर, तो वो एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, राइट? उसी तरह से इन दिस चैप्टर पॉवर्टी के ऊपर कोई डिटेल आंसर जब तुम लिखो, when you are asked to write a detailed answer of 4 marker, sometime it may relate to 3 marker also. So this part is very important that you are going to learn. Otherwise individually this will be asked as your 2 marker. अब ये वाली कंडीशन हमने ऑन एंड ऑफ हम देखते ही रहते हैं फुटपाथ पे कि लोगों के पास शेल्टर तो है ही नहीं. शेल्टर के नाम पे एक छोटा सा प्लास्टिक का एक शेड डाल देते हैं या कुछ कपड़ा डाला हुआ है 4 पोल के ऊपर, राइट? सो ऑन 4 पोल्स दे पुट अ क्लॉथ और अ प्लास्टिक का कोई टुकड़ा उसके अंडर, दैट इज व्हाट दे टर्म एज देयर शेल्टर. देन फूड के नाम पे हार्डली दे गेट एनीथिंग, वॉट एवर दे गेट, कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल गया खाने के लिए. एंड द चाइल्ड, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली ओवर हियर, बट क्योंकि पिक हमारे टेक्स्ट बुक का इतनी क्लैरिटी वाला नहीं दिया गया है, but at least you understood from this section that this is the picture that we see on and off फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनकी यही कंडीशन है. तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन उनके लिए is just like a dream for them, I would say, right? So let's see your 2 marker, very important, learn it. People living below poverty line. Poverty is a qualitative concept here, very important 1 marker. मतलब कि पॉवर्टी हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे. पॉवर्टी कैसे पता चलेगा? 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, वो वैसे हम काउंट नहीं कर रहे. Here we are seeing that what are the features in a person's life that shows that that person is poor. अब तुम्हें या मुझे देख के कोई ये नहीं कहेगा कि भाई ये पॉवर्टी कंडीशन में है. थोड़े बहुत कपड़े अगर फटे हुए भी है, जैसे कि फटी हुई जीन्स, तो हमारे लिए तो एक फैशन है. अब तुम्हारी फटी हुई जीन्स पहन के तुम निकलते हो बाहर, तो कोई ये कहेगा हाय बेचारा पॉवर्टी कंडीशन में रह रहा है या रह रही है. नो, इट्स नॉट दैट. इट्स देन देयर आर, यू नो, बीच में समवेयर फ्यू इयर्स बैक देयर वाज अगेन वन ट्रेंड जहाँ पे टी-शर्ट्स एंड शर्ट्स वो विद पैचेस इन बिटवीन. तो ये थोड़ी ना कि हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो हमने फटा फुटा हुआ कुछ हमने ऐसे पैड डाल दिया और सी लिया उसे और पहन लिया, तो हमें देख के लोग कहेंगे हाय माय बेबी, दिस चाइल्ड इज़ लिविंग आई थिंक सो इन पॉवर्टी कंडीशन. भाई हट्टा कट्टा बच्चा है या बच्चे एकदम मस्त अलमस्त हैं, तो फटे हुए कपड़े उनको पता नहीं, ये तो हमारी फैशन है, वो एक ट्रेंड है दैट वी आर फॉलोइंग विद. तो हमें हमारी जो एक फिजिक है या हमारे जो बॉडी टाइप है एंड हेल्दीनेस easily can be seen on the face also, and we are from a very healthy family and a very well-to-do family, could be anybody can easily make out, ठीक है. बट हम आसानी से कह सकते हैं दैट अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल हुम वी सी ऑन फुटपाथ या जो 4 रस्ते पे सिग्नल के पास भीख मांगते हैं, दे डोंट हैव एनी शेल्टर, दे डोंट हैव न्यूट्रिशियस डाइट इन अ डे. 2 स्क्वायर मील क्या, एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता उनको. तो न्यूट्रिटिव डाइट वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे कि तुम खाते पीते रहते हो काजू बादाम पिस्ता दूध. हाय मम्मी कहेगी मेरा बच्चा 10th में, चलो थोड़े और बादाम खिला दो, अच्छा सा खाना खिला दो, हाथ में सब कुछ दो, यू नो, यू आर बीइंग ट्रीटेड एज महाराजा या महारानी ऑफ द हाउस इफ़ यू आर इन 10th. येस, यू पीपल आर इन 10th. इफ़ का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे यू आर गिवन द मोस्ट न्यूट्रिटिव डाइट इन द हाउस. फिर हम वो बच्चा सिर्फ पैदा हुआ है या 10th में है या कॉलेज में है या काम पे जा रहे हैं तुम्हारे पापा या मम्मी घर का काम कर रही है. वी ऑल नीड इनफ फूड टू प्रोग्रेस इन अ लाइफ, टू मेंटेन आवर हेल्थ, टू
मेंटेन अ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ, लेकिन इन लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो हम वो उनके जो फीचर्स हैं वो देख के पता चल जाएगा दैट दे आर लिविंग इन अ पॉवर्टी कंडीशन। इसलिए हम कहते हैं कि पॉवर्टी इज अ क्वालिटेटिव कंसेप्ट। इन इंडिया पॉवर्टी इज व्यूड एज लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ। तो हमारी कंट्री में पॉवर्टी लोवेस्ट लेवल ऑफ लाइफ की तरह देखी जाती है। अब कॉमन इसके फीचर्स क्या है कि पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जिसे देख के पता चल जाए व्हेन यू रीड दोस पॉइंट्स, उस हिसाब से अगर किसी को देखते हो कि ये पॉइंट्स इसके साथ मैच हो रहे हैं, यस वी से दैट द पर्सन इज इन पॉवर्टी। सो लेट्स सी कॉमन फीचर्स of people who are living below poverty line are given below. So learn each and every perfectly. हाँ, कहीं पे आगे चैप्टर्स में ऐसे भी पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे रिपीट हुए पॉइंट्स ऐसे पिंक डॉट्स में। सो दे आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू। अगर यहाँ पे भी आ जाए तो मैं कह दूंगी जस्ट पुट अ क्रॉस इन योर टेक्स्ट बुक, बट अदरवाइज यू विल हैव टू लर्न। अपने मन से कभी भी कोई भी स्किप ऑफ मत कर देना कोई पॉइंट। फर्स्ट पर्सन इज नॉट एबल टू गेट 2 स्क्वायर मील्स अ डे। 2 वक्त का खाना, ये मैं नहीं कहती काजू बादाम पिस्ता एंड मिठाइयाँ एंड ग्लास भर के मिल्क शेक एंड दूध एंड ऑल दोज थिंग्स। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट फूड, न्यूट्रिटिव फूड दैट गिव्स यू, दैट मेंटेन्स योर हेल्थ, राइट। तो 2 वक्त का खाना इनको नहीं मिलता। सिंपल, जैसे हम कहते हैं एक थाली में देख लो दाल रोटी सब्जी चावल, दैट इज वीट भी आ गया, rice also, so everything they get protein and carbohydrate and they get salt मिला तो एक आयरन की कमी भी नहीं होती। एंड समटाइम उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि कई बार नमक लाने के पैसे नहीं होते, तेल घी तो बहुत दूर की बात है, कई बार किसी का फेंका हुआ जूठा खाना खाना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो स्टेल फूड, राइट, बासी खाना। सो अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू गेट 2 meals a day। सेकेंड, such people they suffer from problem of unavailability of the shelter, मतलब घर नहीं है उनके पास, ड्वेलिंग प्लेस दैट इज कॉल्ड। अगर रहते भी हैं तो दे आर फोर्स्ड टू लिव इन डर्टी रीजन, डर्टी एरिया और स्लम एरिया मतलब झोपड़पट्टी वाले एरिया में। शैबी मतलब डर्टी। देयर इनकम इज लेस देन डिटरमाइन एक्सपेक्टेड इनकम। अब गवर्नमेंट ने एक लेवल रखा हुआ है, एक देयर इज यू कैन से अ लाइन दैट इज ड्रॉन। डोंट इमेजिन कि एक लाइन ड्रॉ की है गवर्नमेंट ने, इज जस्ट दैट देयर इज एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इस इनकम के ऊपर है तो अबाव पॉवर्टी लाइन, ऑन दिस पर्टिकुलर इनकम लेवल तो ऑन पॉवर्टी लाइन, उसके नीचे अगर इनकम है, राइट, डिटरमाइन एक्सपेक्टेड इनकम से कम है, दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी की एक लाइन होती है कि इतनी इनकम तो होनी ही चाहिए विथ इन अ फैमिली विथ मिनिमम वी कॉल इन अ फैमिली ऑफ 5 members, राइट। वैसे तो हमारे यहाँ कई बार हम देखते हैं कि एक घर में 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे भी हो सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग ऑन एन एवरेज एक फैमिली में 2 बच्चे या 3 बच्चे, आई वुड से चलो 2 बच्चे या 1 बच्चा और दादा दादी एंड मम्मी डैडी, तो 5 ऑन एन एवरेज हम लेते हैं 5 members in a family. So that you will learn later on. And so income is less first of all, then decided expected income in the country. Lifespan is very less. Lifespan is less मतलब कि उनकी एज बाकी के लोग जैसे कि तुम और हम, राइट, हमसे उनकी लाइफ स्पैन काफ़ी कम है। जैसे कि गवर्नमेंट ने एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हमारी कंट्री की, जो एक स्टडी के बाद वो एक लिखी गई है दैट आफ्टर दिस मच ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री एंड मेडिकल सपोर्ट जो लोगों को मिल रहा है, बहुत सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ चुके हैं इतने सालों में आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो पहले कोई पर्टिकुलर डिजीज़ में इंडियन मतलब कि हमारी कंट्री के लोग शायद अगर वो डिजीज़ हुई हो तो मर जाते थे एट द एज ऑफ चलो 30s में या 35 में या 40s में कोई डिजीज़ हुई और वो मर गए, right, because we didn't have lot many facilities related to science, technology, medical field and all, and communication and transportation जो fast आज है like 108, right, 108 and not many other things। आज का जो हमारे पास सारी जो सुविधाएं हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो पहले नहीं थी, तो लोग फाइट नहीं कर पाते थे उस डिजीज़ के अगेंस्ट, एंड अगर वो एक छोटी सी एज में वो डिजीज़ आ गई तो मर जाते।
टुडे उसी एज में 30s 40s में अगर वो वाली डिजीज जो पहले लोग मर जाते थे वही डिजीज आज किसी को हो, दैट पर्सन लिव्स अ लॉन्ग लाइफ. तो पॉवर्टी में रहने वाले लोगों के पास, कंट्री में ये सारी चीज़ें हमारे पास उनके, लेकिन ये लोगों के पास पैसे नहीं है वो चीज़ें बाय करने के लिए, राइट? तो उनकी लाइफ स्पेन वैसे भी ड्यू टू मैनी अदर रीजंस ऑल्सो कंट्री की जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उससे कम है. तो पहले थी 30, फिर 32 हुई, फिर 40, 45, 50, 60. आज ऑन एन एवरेज एन इंडियन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कह सकते हैं 70-75 के बीच में आ चुकी है. एंड यू सी दैट टुडे एल्डरली पीपल आर मैनी. पहले इसीलिए भी पॉपुलेशन इंक्रीज हम कह सकते हैं कि पहले बच्चे उतने ही जन्म लेते थे जितने कि आज ले रहे हैं, शायद आज थोड़े कम ले रहे हैं. पीपल आर नाउ मोर नॉलेजेबल, दे आर मोर अंडरस्टैंडिंग. तो 4-5 बच्चे नहीं होते घर में. पीपल आर हैप्पी विथ 1 or 2 चिल्ड्रन. चलो भाई 3 ले लेते हैं, राइट? तो मैक्स टू मैक्स 3 चिल्ड्रन इन अ हाउस. बट वॉट वी से इज कि पहले डिजीज़ जो होती थी तो उसके सामने फाइट करने के लिए हमारे पास कई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो डेथ रेट भी हाई था. आज बर्थ रेट तो वही है, डेथ रेट कम हो चुका है, तो पॉपुलेशन अपना आप इंक्रीज ही होगी, राइट? तो इन पॉवर्टी कंडीशन में रहने वाले लोगों की लाइफ कम होती है. जनरली दे आर इलिटरेट. वेरी ऑफन दे सफ़र फ्रॉम वेरियस डिजीजेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड. एज आई टोल्ड यू, न्यूट्रिटिव डाइट नहीं होगा तो नेचुरली डिजीज़ तो होगी अलग अलग टाइप की. इसीलिए कई बार मम्मी कहती है लड़कियों को जिनके घर में लड़कियां हैं कि भाई डाइटिंग मत करो. क्यों डाइटिंग नहीं करना है? क्योंकि पतले होने की ज़रूरत नहीं है. येस, देयर इज़ अ वे टू बिकम स्लिम एंड ट्रिम, बट बाय रिमेनिंग हेल्दी, बाय ईटिंग लॉट्स ऑफ फूड ऑल्सो यू कैन बिकम थिन. डू एक्सरसाइज, लॉट्स ऑफ जॉगिंग एंड साइकिलिंग एंड लॉट्स ऑफ वर्कआउट एंड ऑल. तो खाओ पियो ऐश करो, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिटिव डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, एंड दे एवरीथिंग इज बर्न्ट ऑफ. यू विल रिमेन हेल्दी. बट नाउअडेज नहीं, बहुत सालों से ये ट्रेंड है कि भाई ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, स्लिम एंड ट्रिम रहना है. और इसमें क्या हो जाता है? उसमें भी डिजीज एंट्री ले लेगी बॉडी में, क्योंकि न्यूट्रिटिव डाइट तो हमारे शरीर में जाता ही नहीं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वी आर इन पॉवर्टी, वो एक अलग रीज़न है. दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट डोंट डू दैट रॉन्ग एक्ट इन योर लाइफ. न्यूट्रिटिव फूड तो लेना ही है डेली. 4 बार मत खाओ, 2 बार तो मिनिमम खा ही लो, सुबह और रात को. अब ये लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो बहुत डिजीज़ फेस करते हैं. चिल्ड्रन हु हैव टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फैमिली at the age actually when they are supposed to go to school and take part in various educational field and take part in entertainment and sports and lot many things, सब कुछ मिस कर रहे हैं ये बच्चे, क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. घर में पूरे दिन काम करके एट द एंड ऑफ द डे थोड़े पैसे कमा के ले आओ तो वो एक हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं पेरेंट्स के लिए. और वैसे भी इनके घर में मोर हैंड्स मोर मनी इज़ अ थियोरी दैट दे फॉलो. इसीलिए इनके घर में 4-5-6 बच्चे होते हैं. रीज़न इज़ जैसे बड़े होंगे ये तो दे विल बिकम अ हेल्पिंग हैंड टू द पेरेंट्स. एंड डेथ रेट इज़ हाई ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन. मतलब जो भी खाना मिले, चलो रात को एनी ह्यूमन बीइंग सोएंगे तो पेट में कुछ तो खाना डाल के ही सोएंगे. फुटपाथ वाले हो या महल वाले, खाना तो सब खाएंगे, बट वी ईट फूड फुल ऑफ न्यूट्रिशन. उनको जो मिलता है वो स्टेल फूड मिलता है, किसी का फेंका हुआ या कचरे में हाथ डाल के जो खाना मिला वो खा लिया, या कई बार 2-3 दिन का बासी कहीं पे पड़ा है. तो इतनी भूख मरी है उनमें दैट दे आर रेडी टू ईट एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे. मतलब कि डेथ रेट हाई हो गए उनमें, नॉट बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग फूड, दे आर गेटिंग फूड. कई बार मिल जाता है तो वो मैल न्यूट्रिटिव डाइट हो जाता है उनका, राइट? स्टेल फूड व्हाट वी कॉल. नाउ व्हाट एफर्ट्स गवर्नमेंट हैज डन टू इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. अब इन लोगों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कौन से एफर्ट डाले हैं, लेट्स सी. सो वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, इफ यू आस्क फॉर 2 मार्क,
like write down the efforts or mention the efforts made by our government to improve the lifestyle of the people living below poverty line. हमारी लाइफस्टाइल तो हम ही बेहतर करते रहते हैं by working hard, earning good, and we are much above poverty line, right? तो गवर्नमेंट इनके लिए एफर्ट डाल रही है कि ये पॉवर्टी लाइन से थोड़े ऊपर आ जाए, राइट, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कंट्री. अब अगर वो हेल्दी रहेंगे तो दे विल बिकम अ पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज वेल, राइट. ताकत होगी तो काम करेंगे, हेल्दी होंगे तो काम करेंगे, तो वो भी डेवलप होंगे, कंट्री भी डेवलप होगी. सो लेट्स सी. फर्स्ट, इनकम ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस इन सिटीज़ एज वेल एज इन विलेजेस. तुम विलेज में जाके देख लो, अपने ही गांव कभी जाते हो, जैसे कोविड टाइम पीरियड में कई लोग अपने पूछती हूँ कि भाई कहाँ हो, तो गामड़े. नाउ दिस इज़ अ न्यू वर्ड दैट आई हैव हर्ड, गामड़े, राइट. विलेज या गांव, व्हाट वी कॉल, बट मे बी आई हैव हर्ड इट वेरी रिसेंटली दिस वर्ड ऑन एंड ऑफ फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि मैम हम यहाँ पे नहीं हैं. तो कहाँ गए बेबी? गामड़े गए. तो फिर पता चला ओ गामड़े मतलब वो अपने गांव गए हैं, राइट. देयर नेटिव प्लेस व्हाट वी कॉल, राइट, या मामा घर जो कहीं पे गांव में है. अब गांव भी ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा गांव, क्वाइट वेल ऑफ. तो विलेजेस में भी अगर ये बच्चों ने जाके अगर टाइम मिला हो और अगर नज़र डाली हो कहीं पे, तो वहाँ पे भी गरीबी है. सिटीज़ में देखो तो भी गरीबी है. सच फैमिलीज आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली और फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. तो अच्छे से लर्न कर लेना. एक तो families who are living below poverty line are called what? Antyodaya family. You will have to learn that. Next, अब ये फैमिली को हम क्यों कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन? क्योंकि इनकम ऑफ दिस पीपल जो सिटीज़ या विलेज में रहते हैं, वो उनकी इनकम, ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों की इनकम बहुत कम है. हार्डली एनीथिंग वी कुड से. अब सेकेंड, गवर्नमेंट क्या करती है? पहले तो ये फैमिली को ढूंढती है ऐसे, दे डू द सर्वे, दे कैरी आउट सर्वे. सर्वे मतलब जांच पड़ताल करना. जैसे कि सर्वे कैरी आउट होता है कि कई बार हमारे यहाँ लोग ना गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे कम एंड दे आस्क कि भाई आपके घर में कितने मेंबर हैं, किसी को फीवर तो है नहीं, अभी नहीं, इनिशियली ऑल्सो, बिफोर ऑल्सो दे इज टू आस्क. एवरी ईयर ऐसे 1-2 बार आते हैं और कितने मेंबर्स हैं फैमिली के, दे नोट डाउन एंड देन दे से कि ओके किसी को बुखार है या नहीं, दैट इज़ फीवर एंड ऑल. एक सर्वे कैरी आउट होता है अलग अलग फील्ड में, राइट. Each department is given different work to carry out the survey in different field. So after finding out or carrying out the survey of such families, government has then started PDS, that is Public Distribution System, on the basis of ration card. Now don't say ration, right? ये भी यहीं पे आके हमने सुना है कि राशन. What is ration? लेट मी टेल यू. ये मेरा एग्जाम्पल वंस अगेन ऑलवेज रहता है क्लास में. सो आई वॉन्ट दैट माई डियर चिल्ड्रन शुड एन्जॉय. ऑनलाइन भी ये सारे एग्जाम्पल्स, वाई शुड यू पीपल मिस इट आउट, राइट. तो इनिशियली लाइक एक्चुअली देयर इज़ अ वर्ड जो मैंने ऑन एंड ऑफ बहुत जगह पे सुना है कि भाई डू यू हैव अ मिल्कन. मैंने कहा व्हाट इज़ दैट, और मैं सुनती भी थी, कोई 2 लोग भी अगर बात करें भाई मिल्कन 6. अब ये मिल्कन 6 क्या है? 6 मतलब है. तो आई डिडंट गेट इट मैनी टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू हियर टू अदर पीपल ऑल्सो, टू अदर लेडीज ऑल्सो टॉकिंग समवेयर इन बॉम्बे ऑल्सो. आई हैव हर्ड द सेम थिंग वेयर आई यूज्ड टू स्टे. और यहाँ पे भी सुना कि भाई ये गुजराती में बोल रहे हैं मिल्कन 6 तुम्हारे पास है. माय गॉड, बहुत सोचा एक दिन बैठ के कि ये वर्ड है क्या. फिर जाके मैंने उसे स्प्लिट किया उस वर्ड को, और फिर वापस सोचा मिल्क तो मिल्क, ओके व्हाट इज दैट कन? इस मिल्क कैन, राइट. उसको बना दिया हमने मिल्कन, राइट. तो दैट इज मिल्क कैन. जो कैन रहता है ना डिब्बा, वो दूध वाला उठा के आता है, दैट ऊपर यू नो दैट बिग डिब्बा, एंड उसके ऊपर एक पकड़ने के लिए दे हैव दैट होल्डर. तो वैसा स्टील का भी एक छोटा सा हर एक के घर में रहता है, यूजुअली आई हैव सीन. तो दैट इज़ कॉल्ड मिल्क कैन.
बना दिया हम लोगों ने उसको मिल्क कन। एक और राशन, राशन की दुकान, राशन शॉप, राशन कार्ड बेबी, लर्न इट प्रॉपरली, इट इज रेशन। रैशनल हम बोलते हैं ना इंग्लिश में, रैशनल मतलब प्रॉपर, इक्वल, एक कम रेट पे लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती इस राशन कार्ड पे नहीं, रेशन कार्ड। अब घर में पूछ लेना आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो लेक्चर, आस्क योर मदर वेयर इज द रेशन कार्ड। डोंट से मम्मा राशन कार्ड बताओ ना, से रेशन कार्ड दिखाओ। अब ये रेशन कार्ड वी डोंट यूज़ एक्चुअली, हमारे लिए तो ये जैसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो इट यूज टू बी एंड इवन टुडे इज़ वेरी हेल्पफुल। इट इज़ लाइक एन आई कार्ड, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है दैट वी आर एन इंडियन सिटीज़न और हमें पर्टिकुलर स्टेट के भी सिटीज़न है एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पासपोर्ट जैसा है ये हमारे लिए। तो हाँ, ये लेके डायरेक्टली कोई और कंट्री में जा नहीं सकते कि मैम ने कहा था ये राशन कार्ड हमारा पासपोर्ट है। नो डियर, रेशन कार्ड इज लाइक पासपोर्ट जितना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और इस रेशन कार्ड पे हमारे कंट्री में या चलो हमारी कंट्री के अलग अलग फैमिली में अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल से हमारे घर में, एग्जाम्पल नहीं है, थे 4 लोग, राइट। अब 2 daughters, मी एंड सो। अब ये 4 में से तो व्हेन सपोज कि अगर मैं रेशन शॉप पे जाती, वैसे कभी गई नहीं आज तक बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू, इट इज़ फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन पॉवर्टी, राइट। हमारे लिए वो एक लाइक आधार कार्ड है। लेट मी गिव यू द वेरी ईजी वर्ड, आधार कार्ड, राइट। तो रेशन कार्ड में लिखा रहता है कि इस फैमिली में इतने मेंबर्स हैं और हर एक महीने फर्स्ट वीक ऑफ ईच मंथ माय फैमिली इज़ गोइंग टू गेट एज पर द नंबर ऑफ मेंबर्स इतना घी, ये तेल, इतना व्हीट एंड राइस एंड शुगर एंड पहले केरोसिन देते थे वो लोग, अब गैस सिलेंडर देते हैं। अब जैसे 2 मेंबर्स चली गई, राइट, चली गई मतलब दे गॉट मैरिड। तो अब हमारे रेशन कार्ड में कितने नाम होंगे? 2 पीपल। तो अब 2 के लिए भी मैं कहूँगी नहीं, मुझे तो पहले जो आप देते थे ना ऐसे 4 साल पहले या 2 साल पहले तक उतना ही मुझे तो चाहिए। भैया वो खाना 4 लोगों का वो देते थे, अब 2 ही मेंबर हैं, रेशन कार्ड पे लिखा है नाउ ओनली 2 मेंबर्स, तो आई विल गेट अकॉर्डिंग टू 2 मेंबर्स व्हीट, राइस, शुगर एंड यहाँ पे केरोसिन लिखा है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि ये 4-5 साल पहले की बुक है, तब भी ये केरोसिन अगर चाहिए तो कई लोगों को आज भी मिल जाता है, बट यूजुअली नाउअडेज पीपल दे यूज़ गैस सिलेंडर। तो रेशन कार्ड पे ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और जो शॉप है उसका नाम है रेशन शॉप, सो डोंट से राशन शॉप, इंग्लिश में उसे कहते हैं हम फेयर प्राइस शॉप या रेशन शॉप। इट इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राइट। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करना है सारी नेसेसिटीज एट वेरी 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 डिस्काउंटेड रेट, एट सब्सिडाइज रेट। क्लियर? सो आफ्टर फाइंडिंग आउट सच फैमिलीज, गवर्नमेंट has started PDS on the basis of ration card. These shops are called Learn It Fair Price Shop. Every month they fulfill the requirements, basic necessities of the families like rice, wheat, sugar, oil, salt, kerosene, etc. of such BPL families, that is family living below poverty line. It has tried to raise their lifestyle or living standard. तो इनका living standard better हो, ये गवर्नमेंट हमेशा देखती रहती है। और रेशन शॉप एक मीडियम है, ये एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू रेज द पीपल अबव पॉवर्टी लाइन। Very important again the next paragraph. Concept of poverty was first propounded, announced, that is by director of World Health Organization. तो ये पॉवर्टी का कंसेप्ट सबसे पहले किसने अनाउंस किया था? WHO के डायरेक्टर ने। टू कैलकुलेट पॉवर्टी लाइन, दैट इज फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन, certain factors are considered which includes expenditure on food, clothing, accommodation, that is shelter, education, health, clean drinking water. देखो पहले मैंने कहा था नेसेसिटीज़ में क्या था बहुत साल पहले? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। टुडे कितने हैं?
food, clothing, shelter, health, education. But now we can add few more also, क्योंकि ये basic necessities है हमारी life की. Then only we can progress in a life, और हमारा progress that is country's development. Clear? जैसे कि एक फैमिली, let's take one family जिसमें 5 लोग हैं, और चलो ले लेते हैं कि 6 लोग ले लेते हैं, मदर, फादर, 2 चिल्ड्रन एंड दादा दादी या नाना नानी या चाचा चाची, लेकिन कमाने वाला एक, जबकि कमा सकते हैं 4 या 3 लोग उस घर के कमा सकते हैं, बट ओनली 1 इज द अर्निंग मेंबर, राइट? व्हाट विल हैपन? लाइफस्टाइल ओके, अगर बहुत नहीं कमाते तो ऑन एन एवरेज ओके, दे आर लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल, नॉट वेरी गुड बट ओके. अब और 4 लोग आ रहे हैं रहने फैमिली के जो अलग हो गए थे पहले, अब कहते हैं नहीं अभी हम चलो साथ में रहते हैं एंड ऑल, एंड स्टिल अर्निंग मेंबर इज ओनली 1 योर फादर. अब देखो अभी कंडीशन हमारी डाउन होती जा रही है, देयर विल बी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, ईच वन विल नॉट गेट दैट दे यूज्ड टू गेट. आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे जो है ये F, दैट इज कैपिटल F डाल देना, राइट? बिकॉज इट्स अ न्यू सेंटेंस दैट इज स्टार्टिंग. So concept of poverty was first announced by WHO director. Next point, poverty line को हमें अगर कैलकुलेट करना है तो कई फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर पे कितना खर्च हो रहा है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन फैसिलिटीज, दैट इज हाइजीनिक वॉश एरिया कंडीशन एंड ऑल, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, एंड तो इस पे जितना हमारा खर्चा हुआ वो हम कंसिडर करेंगे, एंड इनकम एज वेल एज द इनटेक ऑफ कैलोरीज. मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि घर में कितने मेंबर्स हैं. लेट मी मेक इट वेरी सिंपल. एक घर में कितने मेंबर्स हैं वो पहले पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर करते हैं. फिर उस घर के मेंबर्स के इनकम कितनी है. 5 लोग हैं तो इनकम कितनी है, कितने लोग कमा रहे हैं और कितनी इनकम है, बोथ विल कंसिडर. फिर खर्चा उस हिसाब से कितना हो रहा है, कैलोरी इनटेक कितनी हो रही है हर एक मेंबर की, इस बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे सब कुछ. ऑन द बेसिस ऑफ दिस अबव मेंशन ऑल दिस फैक्टर्स अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज फिक्स्ड कॉल्ड एज पॉवर्टी लाइन. अब देखो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होना, उसके लिए कई फैक्टर्स हमने कंसिडर किए कि इतनी इतनी चीज़ें तो मिलनी ही चाहिए, तो हम कहेंगे दिस पर्सन इज एग्जैक्टली ऑन पॉवर्टी लाइन. Let me make it still simpler. Say that चलो हम हर बार, क्योंकि एज पर इकोनॉमिक्स इट इज़ फिक्स्ड कि हम 5 मेंबर लेते हैं फिर से इन अ फैमिली, एंड जो भी एक कमा रहा है या 2 कमा रहे हैं उनकी इनकम के हिसाब से ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है, राइट? तो इनकम 20,000 या 25,000 एक मंथ में, सामने उतना खर्चा हो गया, दे आर लिविंग ओके लाइफ, दे आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरी, यहाँ कहीं पे भी लग्जरी मेंशन नहीं हुई है. लिखा है एजुकेशन, डजंट मीन लाखों रुपए फीस वाली स्कूल. वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट महल एंड बिग बंगलोज एंड या 5 बेडरूम या 3-4 बेडरूम वाला फ्लैट. वी आर टॉकिंग अबाउट शेल्टर, गुड शेल्टर. इट कुड बी 1 room and 1 kitchen. It could be 2 room kitchen. It could be like just 1 big room, right? Clothing, we are not talking about Pantaloon and H&M and what not, like Benetton and और बहुत सारे नाम हैं. तो ज़रूरी नहीं कि तुम वहीं से कपड़े खरीदोगे तो ही तुम पॉवर्टी लाइन के ऊपर कहलाओगे, राइट? क्लोथिंग, सिंपल साफ सुथरे कपड़े टू प्रोटेक्ट यू इन डिफरेंट सीजन. खाना, दाल, रोटी, चावल, सब्जी. न्यूट्रिटिव डाइट, काजू बादाम पिस्ता ज़रूरी नहीं है. ग्लास भर भर के दूध पीना ज़रूरी नहीं है, बट इनफ ऑफ न्यूट्रिटिव डाइट. क्लीन वाटर, क्लीन सैनिटेशन फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए. तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल लेवल की जब उनको मिल जाती है, उतने पैसे उस घर के लोग जब कमा लेते हैं और उतना खर्च हो गया, राइट? वी से दैट पर्सन इज ऑन पॉवर्टी लाइन. उससे अगर इनकम थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी बचत हो जाती है तो दे आर अ बिट अबाउ पॉवर्टी लाइन. फिर और थोड़े ज़्यादा कमा रहे हैं तो चलो
नेसेसिटी पे से थोड़े ऊपर आ गए, कंफर्ट, राइट। और तो ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि इतनी चीज़ें मिलनी ही चाहिए, नॉट लग्जरी एंड ऑल। वंस अगेन रिमेंबर, दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स रिक्वायर्ड। तो दैट पर्सन, तो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि इतनी इनकम होनी ही चाहिए, तो इतना खर्चा वो कर पाएंगे, तो वो लोगों को हम कहेंगे दे आर ऑन पॉवर्टी लाइन। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस अबव मेंशन फैक्टर्स, a particular standard of living is fixed, which is called poverty line. Concept of poverty line changes according to time, location and circumstances. आज तुम यहाँ पे लाख रुपए तुम्हारे पापा कमा रहे हैं मंथली, तो तुम काफ़ी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो। मंथली 1 लाख में घर में 3 या 4 या 5 लोग हैं, इज इनफ। आई वुड से नॉट नेसेसिटी सिर्फ मिल रही है तुम्हें, काफ़ी कुछ उससे भी बेटर मिल रहा है। वी आर क्वाइट अबाउ पॉवर्टी लाइन। 2-3 लाख महीने कमाने वाले और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल। लेकिन यही लाख रुपए अगर कोई और डेवलप कंट्री में कमा रहे हैं, तो हम कहेंगे लाइफस्टाइल नीचे आ गई, राइट। तो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट इंडिया में अलग होगा, डेवलप कंट्री में इनकम अलग हम काउंट करेंगे। टू लिव अ बेटर लाइफस्टाइल, चलो भाई गांव चले जाओ, गामड़े, राइट। अगर यही इनकम में गामड़े चले गए तो वहाँ पे क्या होगा? बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जियोगे, क्योंकि वही गाय भैंस है घर की, तो मिल्क मैन या डेयरी पे जाने, अमूल डेयरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खर्चा कम हो गया। खुद के ही किचन गार्डन की सब्जियां, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो है ना लाइक वेजिटेबल मार्केट, या जो हम कहीं पे भी जैसे अलग अलग सुपरमार्केट में लोग चले जाते हैं सब्जियां या फ्रूट खरीदने, तो वो जो हम डबल द अमाउंट पे करके आते हैं पर केजी, 80 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़, क्योंकि उसके बिना चलेगा भी नहीं, तो वो लेके आते हैं जो भी प्राइस में मिले। अब वो ही गामड़े जाने पे कितना मिलेगा? 10-20 रुपए में। तो फिर वहाँ पे इतनी यू आर नॉट गोइंग लाइक संडे टू संडे चलो घूमने जाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, मूवीज़ देखो, और मूवीज़ में 5 स्टार लाइक मॉल में जाओ घूमने, या बड़े बड़े थिएटर्स में बैठ के, मल्टीप्लेक्स थिएटर में बैठ के ये आराम से लेट के पॉपकॉर्न की बकेट ले ली, लेट के मूवी देखी, एंड यस थम्स अप तो भाई बनता है, साथ में समोसा तो बनेगा ही, फिर बहुत सारी चीज़ें, माय गॉड सुगंध आ रही है, राइट। समोसा, पॉपकॉर्न, थम्स अप के बड़े बड़े ग्लास, इंटरवल के आने की ही राह देखते हैं हम। मूवी में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरवल के लिए हम अवेट करते हैं। जैसे इंटरवल है, पापा पापा मेरे लिए ये ले आओ, दूसरा बच्चा कहेगा ये ले आओ, और भूल से अगर तीसरा बच्चा भी है उस घर में, तो पापा कहेंगे ओके बेबी आई गेट फॉल ऑफ यू, राइट। तो आ गए 4-5 लोगों का सामान, बेचारे पापा उठा उठा के सबके लिए सब लेके आ रहे हैं। दिस इज वॉट गामड़े में नहीं है ये सब। गांव में जाओ तो ये सब तो होगा नहीं, वापस पैसे बचे, देखो इनकम वही है लाख रुपए, राइट। लेकिन सिचुएशन बदल गई, सिटी विलेज, स्कूल के खर्चे इतने नहीं हैं, बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस में भेजने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि पॉवर्टी लाइन का जो कंसेप्ट है, इट इज़ different in different country, and even in our country if we consider it, it is different at different places, and according to time also it changes. Clear? I hope you have understood very nicely. And अगर कहीं पे कुछ भी doubts आ रहे हैं, I told you before that before you sit to listen to the lecture, especially social studies related economics में, और yes English too I would say, एंड ऑफ कोर्स मैथ साइंस तो है ही तुम्हारा प्यारा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू, आई वुड नॉट लाइक टू टेल यू, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि एक डायरी अपने स्टडी टेबल पे रखो। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दैट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग, एक रूम मैंने रिकॉर्डिंग रूम बना के रखा हुआ है, एंड यू विल सी देयर आर मेनी थिंग्स। अब मैं बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती नहीं रहती कि चलो आज किचन में जाके एक लेक्चर दे दिया लैपटॉप उठा के, या फिर आज बैल्कनी में बैठ के मैंने लेक्चर दिया, या आज मैं अपने एक पर्टिकुलर बेडरूम के कॉर्नर में जाके बैठ के मैं लेक्चर दे रही हूँ क्योंकि आज मेरा मूड यहाँ बैठने का है। नो, दैट डजंट वर्क।
व्हेन यू ऑल्सो आर स्टडिंग, फिक्स प्लेस होनी चाहिए, तो वहाँ पे एक एनर्जी बनी रहती है काम करने की. आई शो यू जस्ट नाउ, जस्ट हैव अ लुक. You can see my table over here, all the books lying over here, and you can, yes, this is TV. वो देखने की ज़रूरत नहीं है, right? And you can also see lot many things जो इस रूम में particularly you can even have a look over here. This is the big जो एक पूरा सेटअप किया है for your grammar lectures, वे मैं नहीं दिखाई देती तुम लोगों को grammar lectures में, बिकॉज देर हैव टू राइट एंड शो यू. तो ये पूरा उसका सेटअप है. तो इस लाइक व्हाट आई वांट टू से इज, सॉरी फॉर दैट, वो थोड़ा शेकी हो गया था अभी, बिकॉज आई हैड टू पिक अप माई लैपटॉप एंड शो यू कि एक फिक्स जगह रखो कि तुम्हारी एनर्जी मेंटेन हो. मार्क्स अगर बढ़ाने हैं तो कंसंट्रेशन एक ही फिक्स जगह पे बैठ के पढ़ाई करने से ही होगा. हर बार जगह बदलने से, और हर बार एक बेल बजी है मम्मी कौन आया, रिंग बजी तो है मम्मी कौन फन है, तो यू नो दिस आर ऑल वेरी वियर्ड थिंग्स. ये एक बहुत, और यह बार बार मम्मी बहुत भूख लगी, मम्मी खाने में आज क्या बना रही हो. भैया ये मम्मी का काम है, उसको करने दो. तुम उनके बच्चे हो, उसे पता है तुम्हें क्या चाहिए. शी विल प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, बट यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम. बैठते हो तो 2 घंटे एक ही जगह पे बैठ के पढ़ाई कर लो. अभी 2 घंटे सुन के अभी तो कई बच्चे बेहोश भी हो गए होंगे बाय द टाइम. सो प्लीज़ वेक अप माई बेबीज़. चलो 1 घंटा कर देते हैं. हर 1 घंटे के बाद एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो. जस्ट 3 days बैक आई टेल यू, माई एक्स स्टूडेंट, शी इज़ इन 12th नाउ एंड शी हैड बीन एट अ प्लेस सेम एज यूजुअल. वही 2-3 साल अपने पास थी एंड शी हैज़ टेकन साइंस बायो. अब ये लड़की ने, शी जस्ट गिव मी अ कॉल 2 days बैक to wish me on my birthday, and yes, many students were listening to me over here जिनकी बर्थडे आज ही के दिन पे फॉलो, नॉट आज के दिन, सॉरी, ऑन 8th August, उसी दिन मेरे कई बच्चों की भी बर्थडे थी. एंड येस, वी हैड विशेस की, हमने लेन देन की थी उस दिन. जीत ब्रह्म भट्ट, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि उस दिन उस लड़की ने बहुत एक अच्छी बात की. 3 years बैक, सी नाउ शी इज़ इन 12th, तो 9th में जब थी तो 9, 10, 11, दिस अ 4th year. तो 3-4 साल पहले लाइक वी वर नॉट कम्युनिकेटिंग टू मच. लाइक ठीक है, आई वॉज टीचिंग एज अ टीचर, देयर शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन अ क्लासरूम एज माई स्टूडेंट. धीरे 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 बहुत क्लोज हो गई 1-2 महीने में, एंड वी बिकेम वेरी फ्रेंडली. इट हैपन्स विथ ऑल माई स्टूडेंट्स, वी बिकम वेरी फ्रेंडली सून विद इन फ्यू डेज. जैसे कई मेरी शांत लड़कियां हैं, वो बोलती हैं कम, और उनको पता भी है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ. देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन 10th standard, गर्ल्स स्पेशली, बॉयज़ तो शांत होंगे ही नहीं एक्सेप्ट 1 or 2, बट माई गर्ल्स फ्यू वो आर सो क्वाइट कि 9th में तो इतनी शांत लड़कियाँ थी वो कि आज तक येस मैम, नो मैम, बट येस स्टिल वी नो दैट वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वी बिकम फ्रेंड्स वेरी सून. आई बिकम फ्रेंडली विथ माई डियर चिल्ड्रन. तो हुआ ये कि उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. शी केम टू मी एंड शी स्टार्टेड टेलिंग मी दैट मैम कोई एक सिस्टम बता दो कि कैसे, बिकॉज कंसंट्रेशन नहीं रहता मेरा, और हर आधे घंटे या 15-20 मिनट में मैं खड़ी हो जाती हूँ अपने जगह से पढ़ाई करते करते. फिर लगता है कि ठीक है चलो आज ये नहीं करना, मूड नहीं आ रहा, कल पढ़ूँगी बाद में. तो प्लीज़ सेट some, I would say, timetable for me. And will you believe when she gave me a call on 8th August, just I would say 2 days back, 2-3 days back, तो उसने मुझे कहा कि मैम इवन टुडे आई एम फॉलोइंग दैट टाइम टेबल, और वो पेपर अभी भी मैंने संभाल के रखा है, वो ही फॉलो कर रही हूँ. द पैटर्न द सेम शी फॉलोड इन 10th में थोड़ा रेक्टिफिकेशन करके दिया था. द सेम शी फॉलोड इन 11th. सब्जेक्ट बदल गए सिर्फ वहाँ पे कि भाई इंग्लिश, एसएस, मैथ, साइंस, संस्कृत, गुजराती, पीई की जगह पे और थोड़े और सब्जेक्ट्स आ गए उसकी जगह पे, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो एंड ऑल. और देन नाउ दैट शी इज़ इन 12th, शी वॉज आस्किंग मी दैट मैम
वही फॉलो करूँ उसी हिसाब से कि भाई इतने बजे उठना है, सुबह रात को जल्दी 10 साढ़े 10 तक सो जाना है, सुबह उठना है 5 o'clock, इन बिटवीन 1 घंटा जल से भी मारने हैं, फिर शाम को भी 1 घंटा आराम करना है या 2 घंटे. आई हैड गिवन अ लॉट्स ऑफ टाइम इन अ फुल डे. और अभी तो कोविड टाइम पीरियड, वी आर इन हाउस, तो मैंने कहा कि थोड़ा और तुम आराम कर सकती हो, 2 की जगह पे 3 घंटे रिलैक्स हो सकती हो पूरे दिन में, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा करके. एंड देन शी इज़ फॉलोइंग इवन टुडे. तो एकदम से मुझे तुम सब याद आ गए, मेरे सारे 10th के बच्चे, और मैंने एकदम से उसे कहा दैट प्लीज़ सेंड मी दैट, व्हाट्सएप कर देना वो पेपर. एंड येस, एट प्रेजेंट इट्स नॉट प्रॉपर फॉर मी टू स्टैंड अप फ्रॉम योर एंड गो टू द अदर रूम एंड गेट माई सेल फोन, बिकॉज आई डोंट कीप माई फोन विथ मी. कहीं पे भी रिंग बजने लगती है तो इट्स अ डिस्टर्बेंस. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फॉर अ सेकेंड आई get it over here and just pass on back to the person standing near me. तो वो 1 मिनट का एक थोड़ा मेरा एक्ट होगा जहाँ पे मैं तुम्हें वो पेपर बता सकती हूँ, and last form that she has sent me, or if there is any other format I'll show you that paper next lecture में. तो that is how I want to tell you कि please go through this part perfectly. पढ़ाई करते रहो. हम पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी नहीं है ना पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, हम काफ़ी ऊपर हैं जहाँ पे पेरेंट्स सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तुम्हें. सो एन्जॉय प्लस मेक द बेस्ट ऑफ द टाइम पीरियड दैट वी आर गेटिंग. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है. वैसे पूरा इकोनॉमिक्स ही माई मोस्ट लवेबल सब्जेक्ट आई वुड से. आई लव इट. 3 सब्जेक्ट आई वुड से, नो 4. चलो वैसे करते करते 5-6 हो जाएंगे. बट माई मोस्ट फेवरेट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, दैट इज इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसॉफी एंड मैथ्स. दिस आर दी आई वुड से मोस्ट फेवरेट विच आई ऑलवेज वुड लव टू टीच. तो अभी तो चांस है इकोनॉमिक्स का, तो वी विल एन्जॉय. येस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दैट प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना एक छोटा सा हाँ या ना टू माई वन स्टेटमेंट दैट आई एम गोइंग टू मेक. इज़ इट कंफर्टेबल और प्रॉपर फॉर ऑल ऑफ यू अगर मैं एसेस रिलेटेड स्पेशली कभी एक लेक्चर एसेस का और एक इंग्लिश का साइड बाय साइड में, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, क्योंकि एसएस के काफ़ी लंबे लेक्चर्स हैं. एंड एज यूजुअल बाय नवंबर वी हैव टू कंप्लीट द कोर्स, और मैक्स टू मैक्स दिसंबर फर्स्ट वीक फिर रिवीजन फॉर्म में जैसे पेपर राइटिंग एंड ऑल विल स्टार्ट एंड ऑल. तो आई जस्ट वांट टू आस्क माय डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज़ हर बार सारे बच्चे जवाब नहीं भेज रहे जब भी मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट करती हूँ. एंड 100 में से 5 या 10 बच्चे अगर जवाब दे रहे हैं, आई कांट टेक द डिसीजन. फिर मेरा खुद का डिसीजन होगा कि हाँ भाई चलो 2 की जगह पे 3 लेक्चर रख दूंगी, 3 वीडियोस डाल दूंगी. तो प्लीज़ टेल मी कि इन बिटवीन समवेयर इफ़ ज़रूरी मेरे लिए ज़रूरी बन जाए तो मैं एक एसएस और एक इंग्लिश का वीडियो लेक्चर भेजती रहूँगी फॉर अबाउट अ वीक और 10 days, राइट? सो प्लीज़ सेंड योर आंसर today itself after having a look at this video. So now measurement of poverty, very interesting. Let's move ahead. There are 2 ways of knowing the number of people living below poverty line. अब मैंने ये क्यों कहा कि मुझे 2 लेक्चर भेजने हैं एक ही दिन में? द रीज़न इज़ यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन कि ऑलरेडी ये जस्ट 1-1.5 पेज करने में मुझे नियरली 50 to 60 मिनट्स चाहिए. तो पूरे 15 पेज का चैप्टर, ऐसे और भी 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स आगे होंगे एसएस में, तो वी विल नीड लॉट्स ऑफ टाइम, राइट? या फिर अगर एक साथ 2 चैप्टर नहीं तो मैं संडे भी लेक्चर भेज दिया करूँगी. बट दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट कंफर्टेबल विथ, क्योंकि उनको संडे थोड़ा रिलैक्स होना है. तो ओके फाइन, यू सेंड मी योर आंसर, ठीक है? सो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, हाउ विल वी मेजर? तो 2 ways of knowing the number of people living below poverty line is. तो कैसे पता चलेगा कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, बहुत 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 गरीबी में रह रहे हैं? तो देयर आर 2 ways. फर्स्ट इज कि पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ खर्चा, दैट इज एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज,
और सर्विसेज बाय अ फैमिली। एक फैमिली कितना खर्च कर रही है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट दे आर बाइंग फ्रॉम द मार्केट, लाइक खाना पीना, कपड़े और बहुत सारी चीज़ें हम बाय करते हैं मार्केट से, एंड सर्विसेज लाइक ट्यूशन सर्विस, स्कूल सर्विस, BRTS, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन शॉर्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली। और कितना खर्चा किया एक फैमिली ने और किन किन चीज़ों पे, और उस फैमिली की इनकम कितनी है। तो जब दोनों हम देखेंगे, लेट्स सी, तो पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर फैमिली इट इज़ ऑन पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन। और इस फैमिली के मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? 5। तो दिस विल हैव टू लर्न फॉर 1 मार्क। तो 2 टाइप की पॉवर्टी है यहाँ पे। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट मतलब 100% पॉवर्टी, नो बेसिक, नॉट लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में है ही नहीं। और जब मैं कहती हूँ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, इट मीन्स ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। इज़ नॉट दैट कि 1 मिली और बाकी की गायब, या 4 मिली लेकिन 5th नहीं मिली, ऐसे नहीं। एवरीथिंग अ पर्सन शुड गेट। अगर तुम्ही को हम कहें कि चलो फूड, शेल्टर, एजुकेशन मिला, खाना ही नहीं मिला, सॉरी आई वुड से चलो खाना नहीं मिल रहा, क्लोथिंग, शेल्टर और एजुकेशन मिल रहा है, तो हम कहेंगे ना अभी ये तो नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा। नाउ आई नो क्लास में मुझे दवा मिलता, मैम वो चलता, बट नो, आई वुड से एजुकेशन बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी चाहिए हमें। तो फूड, क्लोथिंग, हेल्थ के रिलेटेड सारी सर्विस, सब कुछ हमें मिलना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जब मिनिमम मार्केट रेट पे भी, मतलब लोवेस्ट ऑफ द रेट पे, जैसे कि हम लेके आते हैं अच्छी 80 रुपीज़ पर kg, अच्छी अच्छी जगह से हम अपने फ्रूट्स पिकअप करते हैं, पल्सेस पिकअप करते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, फूड ग्रेन्स, लेकिन गरीबी में रहने वाले लोग ये सारी चीज़ें कहाँ से उठाएंगे? एट वेरी लोवेस्ट रेट पे रात को जब मार्केट बंद होने का टाइम होता है, लाइक 10 o'clock, मार्केट मतलब रास्ते पे जो सब लारियाँ खड़ी रहती है, अब तब जो बचा कुचा जो रहता है वो लोवेस्ट ऑफ द रेट पे वो लोग बेच देते हैं लोगों को। तो ये लोग इस चीज़ को बाय कर लेते हैं लोवेस्ट रेट पे, लोवेस्ट मार्केट रेट पे। अब वो भी जब वो बाय नहीं कर पाएंगे तो हम कहेंगे दे आर एब्सोल्युटली पुअर, राइट? सो लिसन, those people of this society who are not able to purchase basic necessities of life like food grains, pulses, milk, vegetable at lowest market rate are said to be absolutely poor. और relative poverty मतलब a society has different income group among them. Some groups have low income when you compare with the other group. Such a group is said to be relatively poor. This concept is more existing or prevalent or is seen in developed country. For example, चलो अब यहाँ का एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, पहले समझा दूँ। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब ये हम ज़्यादा डेवलप कंट्री में देखते हैं, वहाँ पे 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, रिच, पुअर, राइट? अब या तो वो पॉवर्टी लाइन के काफ़ी ऊपर है, या एक है जो बहुत ही गरीबी में, अब बहुत गरीब मतलब कि रिच की कंपैरिजन में एक है थोड़ा कम रिच, लेकिन वो उसको डेवलप कंट्रीज़ में काउंट करेंगे एज पुअर, क्योंकि एक की इनकम है 1 लाख, दूसरे की है 10 लाख, तो नेचुरली जो लाख वाला है वो गरीब कहलाएगा डेवलप कंट्री में, राइट? हमारे यहाँ ये कैलकुलेशन नहीं होगी। सो माई एवरी ईयर वंस अगेन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। तो वहाँ पे तो मैं कई लोगों को अंबानीज़ बनाती थी ग्रुप वाइज, कि भाई वो लास्ट 2 बेंच है वो अंबानीज़ हैं, फिर उसके आगे की 2 बेंच वाले हैं वो बच्चे, ना बच्चे इतने खुश होते, वाओ वी आर अंबानीज़ फैमिली सो रिच एंड ऑल। एक एटीट्यूड आ जाता वो 2 सेकंड के लिए भी मेरे बच्चों में कि वाओ मैम ने हमें अंबानी के ग्रुप में डाल दिया। फिर उसके आगे बैठे हैं तो अमिताभ बच्चन वाले ग्रुप वाले हैं, फिर उसके आगे 2 हैं तो शाहरुख खान, उसके आगे हैं तो अब चलो नाम नहीं लेना और किसी के, राइट? फिर हैं थोड़े कम कमाने वाले, फिर एकदम कम कमाने वाले। और तो तुम किसे यहाँ पे तुम हमारी कंट्री में कहोगे कि ये गरीब है और ये पैसे वाला है?
आर वी गोइंग टू, तो हम कैसे दिखेंगे अंबानी के सामने, हो वी आर वेरी पुअर, बट आर वी एक्चुअली पुअर? नो। अंबानी से हम अपने आप को, अमिताभ से अपने आप को, या शाहरुख के साथ अगर हम कंपेयर करें उनकी लाइफस्टाइल और हमारी, तो ये हमारी है, वो उनकी है, तो काफ़ी बड़ा गैप है। अब उसके बीच में भी बहुत सारे दूसरे लेवल्स हैं लोगों के, इनकम ग्रुप वाले, तो हमारी कंट्री में कंपेयर करना इजी नहीं होगा, राइट? अब एक पर्टिकुलर चाइल्ड, वन चाइल्ड इज से स्कोरिंग से 95%, अदर इज स्कोरिंग 99, एक स्कोर कर रहा है 89, एक स्कोर रहा है 85, इसका मतलब 85 वाला डफर है या 85 वाली लड़की मेरी डफर है? नो, इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट वी आर कंपेयरिंग द 4 लेवल्स, 98, 95, 90, 89, 85, इन सबको जब कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे वो 85 वाला या वाली लीस्ट है। वैसे ही तो इसे हम कहेंगे कंपैरेटिव, रिलेटिव पॉवर्टी। तो हमारी कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है रिलेटिव पॉवर्टी, ये सिर्फ डेवलप कंट्री का कंसेप्ट है। हमारे यहाँ तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राइट? नाउ यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लो, मिस्टर ए अर्न्स 10,000, बी 20 और सी 30,000। ये 3 लोगों की इनकम है। एज ए इनकम ऑफ ए इज लेस टू बी, तो ए को हम कहेंगे गरीब, फिर बी का सी से कम है तो हम कहेंगे बी गरीब है, राइट? तो दे आर सेड टू बी पुअर। अगर और एक मिस्टर डी होता विथ 50,000 तो हम कहेंगे सी गरीब है। क्लियर? बट एक्चुअल में ए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन सब कुछ बाय कर सकते हैं एट द लोवेस्ट मार्केट रेट, वो बाय कर लेते हैं, तो वो गरीब तो हुए ही नहीं, राइट? दे आर ऑन पॉवर्टी लाइन, दे आर नॉट कॉल्ड पुअर। लेकिन कंपेयर करेंगे तो नेचुरली ए इज पुअर, देन बी एंड सी, बी इज पुअर, देन सी एंड डी, सी इज पुअर, देन डी, तो डी रिचेस्ट हुआ। तो ये तो हमारे यहाँ पॉसिबल है ही नहीं कंपेयर करना, बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। सो फॉर टुडे आई वुड से वी स्टॉप ओवर हियर, और आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, पॉवर्टी इन इंडिया, एंड आई विल टेल यू व्हाट ऑल टू लर्न इन डिटेल। ज़रूरी नहीं कि इतने सारे नंबर्स लर्न कर लो, थोड़े बहुत होंगे लर्न करने। सो थैंक यू, एंड वी मीट वेरी सून, दैट इज विद द सेम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सो टिल देन, थैंक यू सो मच।